Recording in progress. Hello everyone, let's start the class. Today we are going to discuss about paper 5 planning analysis and evaluation और आज हम discuss कर रहे हैं May June 2018 variance 52. So far we have done 5 papers from June 2022 till June 18, and in that 5 papers we have covered around 20 questions, right? So let's see what we have in this paper. Obviously, okay. When concentrated iron 3 chloride, I believe iron 3 chloride का फॉर्मूला आता होगा आप सब लोगों को A2 के अंदर. इसका फॉर्मूला है FeCl3 is added to water just below boiling point. Reaction occurs and produces Fe2O3 seen as a red color in the water. And obviously अगर ये Fe2O3 है और इसका कलर रेड है तो इसका मतलब ये रस्ट होगा, right? This is a sol of Fe2O3. उन्होंने sol का नाम दे दिया है. A sol contains particles that are insoluble but do not form a precipitate. Okay. A student prepared concentrated solution of iron 3 chloride by dissolving hydrated salt in distilled water. Distilled water में हम place कर रहे हैं. Obviously हमने tap water use नहीं किया इस केस में. मैंने tap water क्यों नहीं use किया? मैंने tap water इसलिए use नहीं किया क्योंकि tap water के अंदर impurities होती हैं. वो impurities जो हैं वो इस solution की concentration को change करेंगी, and obviously पूरे के पूरे experiment के ऊपर भी impact आएगा जिसकी वजह से हम tap water use नहीं करेंगे. Hazards information for hydrated iron 3 chloride is given. For this hazard, state a precaution other than eye protection and a lab coat that the student could take when preparing a solution of concentrated iron 3 chloride. Hazard है कि solid hydrated iron 3 chloride is irritating the skin. तो अगर मुझे skin को protect करना हो तो मैं obviously lab coat use नहीं कर सकता. मैं eye protection तो eye को protect करने के लिए होती है. Skin protection के लिए obviously मैं chemical resistant glove use करूंगा, जो मैंने आपको previous lectures में बताया nitrile gloves भी कहते हैं. ठीक है, तो chemical resistant gloves और nitrile gloves. Now the next is particles of sol can be positively or negatively charged. Okay, तो अगर positively charged हैं तो वो obviously negative terminal की तरफ चले जाएंगे. अगर negatively charged हैं तो वो obviously positive terminal की तरफ चले जाएंगे. That's how they attract each other. Now the next is the student used the experimental setup shown to confirm that Fe2O3 sol particle is positively charged. Again, जो हम Fe2O3 sol particle है वो positively charged है. The entire thing is positively charged. All right, the entire thing is positively charged. ये डायग्राम है. Obviously आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये U-ट्यूब है, इसमें डिस्टिल वाटर आपने ऐड किया हुआ है और ये Fe2O3 का रेड सॉल है, राइट? और ये DC सप्लाई है. ये आपका ऑब्वियसली कैथोड है, ये आपका ऑब्वियसली एनोड है. ठीक है. The student placed a few centimeter cube of the sol at the bottom of the U-tube and poured 10 cm cube of distilled water into each side of the U-tube. Without disturbing the sol, 2 layers of distilled water were colorless at the beginning of the experiment. Graphite electrodes were inserted and a current was passed. After 30 minutes, a difference was noted between distilled water into the 2 sides of the tube. So basically, आपके पास 30 minutes आपने एक्सपेरिमेंट पे स्पेंड किए हैं जिसमें हमने 10 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूट्यूब के दोनों साइड्स पे प्लेस किए. यानी आपने पॉजिटिव प्लेट की तरफ भी किया, आपने नेगेटिव प्लेट की तरफ भी किया हुआ है. सही है. वो कह रहे हैं प्रेडिक्ट द कलर of the distilled water in both sides of the U-tube after 30 minutes if Fe2O3 salt particle is positively charged. आप जानते हैं कि salt particle जो है वो positively charged है, आपका positive electrode भी positively charged है, which is why दोनों के दरमियान repulsion होगा और इस repulsion की वजह से positive electrode remains colorless, उसके ऊपर कोई color नजर नहीं आएगा. सही है. So हम यहाँ लिखेंगे remains colorless
Why remains colorless? Because both electrode and sol particles are positively charged, so they will experience repulsion. Right? Now the next is, it is a negative electrode. क्योंकि सॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे यानी इस साइड पर सॉल का रेड कलर नजर आएगा आपको. ठीक है, रेड कलर towards negative electrode. Why? Because sol particle is positively charged, so it is attracted towards negative electrode. I hope it makes sense to you. Now the next is salt solutions can be added to salt to cause them to precipitate. This method is used in water purification. Okay, the student made up to 100 cm cube of a standard solution. Okay, containing 0.10 mole per dm cube of the following ions. ये ions दिए हुए examiner ने, potassium, magnesium, aluminum, chloride, sulfate, phosphate. वो कह रहे हैं what mass of solid potassium sulfate did the student use to make up exactly 100 cm cube of 0.1 mole per dm cube sulfate ions. So I know the concentration and volume of sulfate ions, which means I can find the moles of sulfate ions, and from that I can take out the moles of potassium sulfate. And once if I'll get the moles of potassium sulfate by using the MR, I can find out the mass of potassium sulfate. So this is the first step, and I believe we should know कि हमें MR of potassium sulfate कैलकुलेट करना चाहिए. तो ये आपके पास हो जाएगा 174.3. Now in the second step, we know कि 1000 centimeter cube of sulfate ions contain 0.100 mole. If we have 100 centimeter cube, तो obviously moles of sulfate आपके पास आ जाएंगे 0.01 mole. Alright, हम सब जानते हैं कि पोटेशियम सल्फेट को अगर हम आयोनाइज करें, so it will turn to 2 potassium ions in a sulfate ions. तो अगर ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है और आपने यहाँ से 0.01 मोल कैलकुलेट किए, तो ऑब्वियसली पोटेशियम सल्फेट के मोल्स कितने हो जाएंगे? सेम, दैट इज 0.01. Alright, we know the MR, so by using that I can find the mass of potassium sulfate. तो 0.01 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 174.3 से, so it's going to be 1.743 ग्राम. तो हम यहाँ लिख देंगे 1.743 ग्राम. Alright, फिर वो हमसे कह रहे हैं in the next part of the question
describe how the student should have accurately prepared this volume. Just hold on a second. All right. Now, in the next part of the question, they are saying, describe how the student should have accurately prepared this volume of a standard solution from a sample of K2SO4 of mass calculated in C part 1. So बेटा बहुत आसान सी चीज है, ये स्टॉक सॉल्यूशन हमसे प्रिपेयर करवा रहे हैं, हमने पहले भी प्रिपेयर करके दिया। तो हम क्या करेंगे, हम इस मास को लेंगे और 250 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर लेंगे, उसमें प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद उस बीकर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, सॉल्यूशन को स्टर करेंगे और इसको अच्छी तरह से इस अमाउंट को मिक्स कर लेंगे। जब ये अमाउंट मिक्स हो जाएगा तो फिर इस डिसॉल्व अमाउंट को उठाकर हम फिल्टर फनल यूज करके ट्रांसफर करेंगे 100 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। व्हाई 100 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क? बिकॉज हमने यहाँ पर 100 cm क्यूब का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, राइट। 100 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करने के बाद जिस बीकर के अंदर हमने ये मास डिसॉल्व किया था, उस बीकर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और वॉशिंग करेंगे। वो वॉशिंग भी हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करेंगे। उसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को 100 cm क्यूब मार्क तक मेकअप करेंगे यूजिंग ड्रॉपर और ड्रॉप बाय ड्रॉप, और स्टॉपर लगाकर उसको अच्छी तरीके से शेक करेंगे ताकि कंटेंट जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। That's what we need to do in this part of the question, and let's start with one by one point. Okay, so dissolve 1.743 gram of potassium sulfate in 250 cm cube through a small amount of distilled water. Stir the mixture to mix well. Transfer this solution through filter funnel in 100 cm cube, और हम एक्यूरेट लेंगे क्योंकि हमें एग्जामिनर ने यहाँ पर 100.0 cm क्यूब कहा है, तो we need to be more accurate. ओके, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे in 100.0 cm cube volumetric flask. Now the next is wash the beaker. Wash the beaker with distilled water and transfer this washing in a volumetric flask. Add distilled water drop by drop.
up to 100 cm cube. Shake the flask properly to mix well. Shake the flask properly to mix well. Okay. Now, in the next part, a student carried out an experiment to precipitate Fe2O3 salt using 0.1 mole per dm cube K2SO4. Only one drop of K2SO4 was needed for the complete precipitation of 10 cm cube of Fe2O3 salt. Calculate how many moles of sulfate ions were added. Assume that one drop is 0.05 centimeter cube, and that's what we have done in titration. कि हमने बताया आपको कि one drop जो होता है वो हमेशा 0.05 centimeter cube के equal होता है. So we know the concentration, we know the volume, right? और हमें 0.05 सेंटीमीटर क्यूब यूज करके मोल्स डिटरमिन करने. तो दैट्स एन इजी टास्क एक्चुअली. 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास 0.100 मोल्स हैं. ठीक है. तो अगर हमने 0.05 सेंटीमीटर क्यूब लिया हुआ है यानी 1 ड्रॉप लिया हुआ है, तो मोल्स कितने होंगे? So it's going to be 5.00 into 10 to the power minus 6 moles. ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे 5.00 into 10 to the power minus 6 moles. अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि वो how many moles of sulfate ions पूछ रहे हैं हमसे, जबकि हमने यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट लिखा है. अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ये बात समझाई थी कि पोटेशियम सल्फेट और सल्फेट आइंस दोनों में रेशियो 1:1 का होता है. तो आप पोटेशियम सल्फेट के मोल्स निकालो या सल्फेट आइंस के, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ऑलराइट. तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें. In the next part of the question, the student decided to dilute the standard solution. That's called dilution, right? Of 0.1 mole per dm cube K2SO4 to make 50 cm cube of 0.01 mole per dm cube this. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से एक डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं बाय एडिंग वाटर, राइट? सो आप सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंट कर रहे हैं, तो मोल वुड बी द सेम, राइट? यानी ये कॉन्सेप्ट है इसका पूरा कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर एक्चुअली मेरे पास सोल्यूशन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का, और मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं 0.01 मोल पर डीएम क्यूब में. यानी मैं चाह रहा हूं कि ये हो जाए 0.01 मोलर. ऑलराइट. और ये होना कितना चाहिए? 50 cm क्यूब. ठीक है. सो मैं बेसिकली यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं बेसिकली यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंट कर रहा हूँ, तो मोल्स तो सेम होंगे बट कंसंट्रेशन डिफरेंट हो रही है. ठीक है. सो बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं आपको. होगा ये कि ये आपके पास हो जाएगा C1, ये आपके पास हो जाएगा C2, ये हो जाएगा आपके पास V1, and I think we need to find out the volume, and this volume is going to be V2, right? So हम सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं. C1 P1 equals to C2 V2. C1 मेरे पास है 0.1, V1 मेरे पास है 50, C2 मेरे पास है 0.01 और V2 मुझे डिटरमिन करना है. तो यहां से V2 हो जाएगा 0.1 into 50 divided by
0.01, तो यहां से V2 मेरे पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली अगर एग्जामिनर ने यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए हुए हैं, राइट, तो मुझे भी यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, तो मैं लिखूंगा एक्यूरेटली 5.00 cm क्यूब। ऑलराइट, दैट्स आल्सो कॉल्ड सीरियल डाइल्यूशन। फिर वो कह रहे हैं आपसे कि नेम अ पीस ऑफ एपेटाइट दैट कुड बी यूज्ड टू मेजर एक्यूरेटली, you need to measure this volume accurately. What volume? This volume accurately. तो जाहिर सी बात है ये वॉल्यूम 2 डेसिमल प्लेस तक है, और 2 डेसिमल प्लेस की जो रीडिंग होती है वो ब्यूरेट से मेजर की जाती है। आप इसको पिपेट से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि पिपेट के ऊपर ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता, राइट। तो वी नीड टू यूज प्यूरेट इन दिस रिगार्ड। Now the next is, in an alternative method, 50 cm cube of 0.01 mole per dm cube potassium sulfate could be prepared by using 0.0872 gram. Okay. तो हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर रहे हैं और हम दिस मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, राइट। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई dilution method used by the student to prepare 50 cm cube of this potassium sulfate is more accurate of the two methods. Okay, तो एक जगह हम dilution कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो dilution ज्यादा बेहतर है। ऑन द अदर हैंड हम कह रहे हैं कि हम अगर इस मास को डायरेक्टली डिसॉल्व करें तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है। ओके, तो मुझे अगर यार इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने मास कितना लिया था, मैंने मास लिया था 1.747, राइट। लेकिन अब जो है मुझे मास कितना दिया गया है, ये मास दिया गया है, यानी 1.747 ग्राम था जिसके थ्रू मैंने ये प्रिपेयर किया, और अब कह रहे हैं कि ये यूज करो। तो जाहिर सी बात है मास कम हो गया, जब मास कम होगा तो परसेंटेज एरर बढ़ेगा, राइट। और जब परसेंटेज एरर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एक्यूरेट नहीं रहेगा फिर वो, ठीक है। तो हम बता देते हैं आपको, if a smaller mass like 0.0872 gram is used, then it might increase the percentage error. If it might increase the percentage error, in order to make the stock solution, solution bolo, it doesn't make any difference. So it's not going to be so accurate. जितना ज़्यादा percentage error होगा उतना ही वो less accurate होगा. So it's not going to be very accurate. इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ मास को यूज करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, बिकॉज वहां परसेंटेज एरर ज्यादा होगा। Okay, now next part is G is saying that the student carried out experiment to investigate how much of the particular salt solution was required to fully precipitate all the Fe2O3 salt in a 1000 centimeter cube sample. 1000 centimeter cube sample ले रहे हैं। 1000 centimeter cube sample लेने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी सैंपल है वो 1 dm cube में है, because 1 dm cube is always equals to 1000 centimeter cube. All right. The salt solution used were
all of the concentration 0.01 mole per dm³ with respect to the ion being investigated. ठीक है, जितने ये सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, एक्सपेरिमेंट 1 है बेसिकली मेरे पास, और इस एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर हमने जो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है वो है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट। यहाँ पर एनाइन का चार्ज है -1, इस केस में एनाइन का चार्ज है -2, और इस केस में एनाइन का चार्ज एज यू कैन सी -3 है, राइट। और अमाउंट of anion required for complete precipitation of 1000 centimeter cube is this, यानी ये वैल्यू ज्यादा है, फिर ये वैल्यू कम हुई, और ये वैल्यू कम हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चार्ज ऑफ एनाइन इंक्रीज कर रहे हैं, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन डिक्रीज हो रहा है, राइट। ये एक्सपेरिमेंट 1 की सिचुएशन है, जो कि हम यहाँ लिख के दे देते हैं आपको कि हमने जो चीज ऑब्जर्व करी है हम शेयर कर लेते हैं। हम शेयर ये कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि as the charge of anion increases, amount required for complete precipitation also decreases as seen in the data. ठीक है, एक बात और ख्याल रखिएगा, वो ये कि आप नोट करें मैंने एक्सपेरिमेंट 1 में कैटाइन सेम रखे हैं, यहाँ भी पोटेशियम, यहाँ भी पोटेशियम, यहाँ भी पोटेशियम, सही है। तो सेम कैटाइन रखा है मैंने यहाँ, एनाइन चेंज कर रहा हूँ, सेम कैटाइन बट एनाइन चेंजेस, ये भी जहन, एनाइन चेंजेस, ठीक है। नाउ इन एक्सपेरिमेंट 2 आप नोट करें मैंने यहाँ पर एनाइन सेम रखा है और मैं कैटाइन को चेंज कर रहा हूँ, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, सेम एनाइन बट कैटाइन चेंजेस, सेम एनाइन बट कैटाइन चेंजेस, ठीक है। और यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैटाइन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन है वो देखिए ऑलमोस्ट -1 -1 -1, और ये भी 1, ये भी 1.1, ये भी 1.1, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, सही है ना। प्रेसिपिटेशन के अंदर वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है, राइट। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस पार्ट। वो कह रहे हैं आपसे describe the effect of changing the charge on the anion from -1 to -2 to -3 on the precipitation of Fe2O3 solid in experiment 1. That's what I have told you. That's what we have written here. That's what we have written here. Okay, as the negative charge of anion increases, amount required for complete precipitation of anion would decreases, right? और ये ऑब्जर्वेशन हमारी थी, तो हम इसी बात को लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे एस negative charge of the anion increases, lesser amount of anion is needed to precipitate the sol Fe2O3, ठीक है।
सही है। तो जो अमाउंट ऑफ एनाइन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन वो डिक्रीज हो रहा है। आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट 2। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो पहले भी बात हो चुकी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाट वी चेंज। ठीक है, सो चेक व्हाट वी चेंज हियर। व्हाट वी चेंज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप नोट करें मैं क्या चेंज कर रहा हूं। मैं चेंज कर रहा हूं चार्ज ऑफ द कैटाइन। वो +1 से +2 हुआ, +2 से +3 हुआ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 में पूछ रहे थे वो हमसे। तो हम लिखेंगे चार्ज ऑफ द कैटाइन, चार्ज ऑफ द कैटाइन। Now, in the next part of the question, arsenic sulfide is highly toxic and should be removed from drinking water because arsenic एक heavy metal ion है और heavy metal poisoning हो जाती है, which is not good, which is why हमें drinkable water से इसको remove करना होता है। वो कह रहे हैं Fe2O3 salt particles are positively charged, that's important, whereas arsenic sulfide salt particles are negatively charged. Okay, based on the student's result, which salt used in either experiment 1 or experiment 2 would be the most effective at removing arsenic sulfide from drinking water? Most effective at removing arsenic sulfide from drinking water, most effective, explain your answer. तो जाहिर सी बात है अगर ये सॉल्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसको रिमूव करने के लिए आई विल यूज कैटाइंस, राइट। तो इसका मतलब हमें कैटाइंस को देखना है, हमें इनमें से किसी एक को देखना है। और सबसे ज्यादा चार्ज जो है वो AlCl3 का है। इसका मतलब AlCl3 इज द सॉल्ट जिसको मैं आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज कर सकता हूं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AlCl3। एक चीज और कि अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज है तो जाहिर सी बात है इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए मैंने नेगेटिवली चार्ज यूज करना है। ये यूज हुए थे नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। रिमूव दिस by precipitating this via cation, सॉरी anion, क्योंकि खुद पॉजिटिवली चार्ज है और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं इसलिए इनको रिमूव करने के लिए मैं पॉजिटिवली चार्ज आयन यूज करूंगा, कैटाइन यूज करूंगा। रिमूव दिस by precipitating via cation. So which cation? वो कैटाइन जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है, और चार्ज किसका सबसे ज्यादा है? एल्यूमिनियम का। इसका मतलब AlCl3 वुड बी द सॉल्ट जिसको मैं आर्सेनिक सल्फाइड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो हम कुछ अलोंग द लाइन यही लिखते हैं कि आर्सेनिक सल्फाइड As2S3 is negatively charged, so we can precipitate it out through cation since aluminum ion has highest charge so it can attract strongly arsenic sulfide salt particles As2 As2 .
salt particles. I hope it makes sense to you. All right. So that's the end of question number 1. Let's move on to the question number 2. Water boils when the pressure of its vapor above the liquid surface is equal to the atmospheric pressure. That's a perfect statement. कोई भी लिक्विड उस वक्त बॉयल होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। अगर इक्वल नहीं है तो लिक्विड भी बॉयल नहीं होगा, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम भी एक एस्टैब्लिश हो चुका होगा। When substances are dissolved in water, the vapor pressure of the water is reduced and its boiling point is increased. तो जब आप किसी भी वाटर के अंदर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है। The increase in boiling point is known as the boiling point elevation, which is represented by delta T, and that's a very important statement, which is the difference between the boiling point of a solution and the boiling point of pure water. Delta T is usually small, often less than 1 degree Celsius. When glucose is dissolved in 1 kilogram of water, the relationship between delta T and the number of moles of glucose dissolved is shown. That's another very important expression. ठीक है, जहन में रखना है आपने ये एक्सप्रेशन। फिर वो कह रहे हैं कि Kb जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है प्योर वाटर का, और Z जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg। तो इसकी यूनिट है आपके पास मोल किलोग्राम इनवर्स, ये याद रखिएगा, मोल किलोग्राम इनवर्स है Z की यूनिट। ओके, वो आपसे पूछ रहे हैं यूज दिस इंफॉर्मेशन अबव, एक्सप्लेन व्हाई lowering the vapor pressure of a liquid increases the temperature at which it boils. अगर वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब वो बॉयल भी नहीं होगा। अब अगर मुझे बॉयल करना हो लिक्विड को तो जाहिर सी बात है मैं उसको टेम्परेचर एनर्जी प्रोवाइड करूंगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा और इस तरह से वो लिक्विड बॉयल होगा। सो इन ऑर्डर टू बॉयल अ लिक्विड वी नीड टू रेज द टेम्परेचर, राइट। सो 1 मार्क का पार्ट है, तो हम जरा इसको लिख देते हैं अच्छे से। Lowering the vapor pressure means it is not equal to the atmospheric pressure. If it is not equal to the atmospheric pressure, this means liquid cannot boil. To boil the liquid, we need to provide energy. To boil the liquid, need to provide energy. और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को रेज करेंगे। And for that, temperature needs to be raised. जब हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो फिर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा और इस तरह से लिक्विड बॉयल होगा। So vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, hence liquid boils. Hence liquid boils. Okay. Now the next is
A student carries out an experiment to determine the boiling point constant Kb for water. The student uses anhydrous glucose, जिसका formula है C6H12O6, as the solute because it is non-volatile and very soluble in water. Now the point is why it is very insoluble in water, because glucose exhibits hydrogen bonding. That's what we have done in A1. Because glucose exhibits हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप जानते हैं कि जब कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो आयोनाइज नहीं हो सकता, बट नॉट आयोनाइजेस. ठीक है. द एक्सपेरिमेंटल सेटअप द स्टूडेंट शोन इज यूज्ड. ओके. पार्ट बी, शो using a labeled arrow where the cooling water enters the reflux condenser. So आप जानते हैं यहां से water in होगा, this is water inlet and this is water outlet. सही. फिर वो कह रहे हैं a digital probe thermometer is used as shown in the diagram. वो कह रहे हैं explain why normal laboratory glass thermometer would not be suitable. Guys, इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर चेंज आप डिटरमिन करेंगे, पहले तो बिफोर एक्सपेरिमेंट एक टेम्परेचर नोट डाउन होगा, फिर आफ्टर एक्सपेरिमेंट एक टेम्परेचर नोट डाउन होगा. तो T2 माइनस T1 जब आप करेंगे तो आपको डेल्टा T मिलेगा. ये जो डेल्टा T है ये बहुत स्मॉल होगा, राइट. और ये स्मॉल डेल्टा T आप जो नॉर्मल लेबोरेटरी ग्लास थर्मोमीटर होता है उसके थ्रू मेजर नहीं कर सकते, विच इज व्हाई वी नीड अ डिजिटल प्रोब थर्मोमीटर, सो दैट विल गिव यू more accuracy of 2 decimal place. ठीक है. हम यहाँ लिख देंगे digital probe thermometer has an accuracy of 2 decimal place so it can measure a smaller temperature change during the experiment. Which cannot be possible through normal laboratory thermometer. All right. One more thing, इस डायग्राम में ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स भी डाले हैं. वैसे तो उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जामिनर इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स. पहला क्वेश्चन. दूसरा, एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स जो हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं. ये दो चीजें जो हैं वो एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं, राइट. तो हम इस एरिया को भी कवर कर लेते हैं. हम यहाँ बता सकते हैं कि एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो सिलिका बीड्स के बने हुए होते हैं, फ्यूज्ड एलुमिना के बने हुए होते हैं. मेड अप ऑफ सिलिका बीड्स. सिलिका तो पता है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं सिलिका बीड्स, और फ्यूज्ड एलुमिना. और एलुमिना का मतलब होता है एलुमिनियम ऑक्साइड. फ्यूज्ड एलुमिना, राइट. और किस लिए यूज करते हैं? स्मूथ बॉइलिंग के लिए. कि अगर बहुत ज्यादा विग्रस बॉइलिंग हो रही है तो उस विग्रस बॉइलिंग को स्मूथ करने के लिए हम एंटी बंपिंग ग्रैन्यूल्स ऐड कर देते हैं.
for smooth boiling. सही है. Now the next is the students follow this procedure. Transfer 75 gram of distilled water to the round bottom flask. Okay. Add anti-bumping granules to the distilled water to prevent violent uneven boiling. चलें, यहाँ पर उसने कह दिया जो मैंने पीछे बोला उसने यहाँ लिख भी दिया है. फिर वो कह रहे हैं heat the distilled water until it boils and record the highest stable temperature. Stop heating and allow the distilled water to cool to room temperature. सही है जी. तो क्वेश्चन इज कि भाई डिस्टिल्ड वाटर को रूम टेम्परेचर पे कूल क्यों कर रहे हैं? Why we need to cool the temperature? Why we need to cool the distilled water after stop heating? That is a major concern. Why? आप सब जानते हैं कि जब मैं डिस्टिल वाटर को हीट करूंगा तो डिस्टिल वाटर जो है वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर गया होगा. तो अगर मैं रिफ्लक्स कंडेंसर को रिमूव करूंगा तो वो डिस्टिल वाटर स्टीम की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा फ्लास्क से. सो उस स्टीम के निकलने के रोकने को जरूरी है कि मैं उसको कूल करूं एट रूम टेम्परेचर पे ताकि वो रीलिक्विफाई हो जाए और जो अमाउंट है मेरे पास स्टीम का वो डिस्चार्ज ना हो. ठीक है. सो उसको हम कुछ तमीज से इस तरह से लिख लेते हैं. टू प्रिवेंट escaping steam. Now the next is remove the reflux condenser and add about 1 gram of anhydrous glucose. तो जब आप रिफ्लक्स कंडेंसर को रिमूव करोगे तो जाहिर सी बात है वो जो फ्लास्क होगी उसमें से स्टीम निकल जाएगी. तो इसलिए स्टीम का निकलने को रोकना है. एंड फॉर दैट मुझे डिस्टिल वाटर को रूम टेम्परेचर पर कूल करना है. Measured accurately. Okay. इसके बाद वो कह रहे हैं replace the reflux condenser in heat the solution until it boils, noting the highest stable temperature. Repeat step 4 to 6 each time, adding approximately 1 gram more of anhydrous glucose accurately way, accurate measurement की भी हो until sufficient readings are taken. In step 4, the heating is stopped and the distilled water allowed to cool from its boiling point before removing the reflux condenser. Apart from the safety reasons, explain why this is essential. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि वैसे तो एपरेटस बहुत हीटेड होता है, तो हीटेड एपरेटस को आप जो है वो हैंडल नहीं कर सकते. तो एक तो सेफ्टी रीजन ये हो गई, लेकिन कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस सेफ्टी रीजन मुझे डिस्टिल वाटर को रूम टेम्परेचर पे कूल करना क्यों जरूरी है. तो मैंने आपको बताया कि मुझे स्टीम का जो रिमूवल है वो रोकना है. अगर स्टीम का रिमूवल नहीं रुकेगा तो जाहिर सी बात है डिस्टिल वाटर का जो मास है वो चेंज हो जाएगा, इनफैक्ट डिक्रीज हो जाएगा. राइट. तो जब डिस्टिल वाटर का मास डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से कैलकुलेशन पे भी फर्क पड़ेगा, एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे भी फर्क पड़ेगा. तो हम यहाँ कह सकते हैं to prevent the removal of steam from escaping if allowed to escape, mass of distilled water changes and obviously decreases. फिर वो आपसे पूछ रहे हैं at 101 kilopascal that is on 1 atm distilled water is known to be boiled at 100 degree Celsius. जाहिर सी बात है
जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल होगा तो लिक्विड बॉयल होगा और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा एंड इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है. सजेस्ट व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 99.48 डिग्री सेल्सियस. Why the boiling point of distilled water in this experiment was found to be 99.48 degrees Celsius. Assume that the digital probe thermometer was reading accurately. सारी चीजें एक्यूरेट थी, हर चीज हमने ख्याल रखा, लेकिन उसके बावजूद 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय टेम्परेचर आया मेरे पास 99.4 डिग्री सेल्सियस. तो रीजन ये हो सकती है कि भाई 1 atm प्रेशर के ऊपर इतना टेम्परेचर था, जब टेम्परेचर कम हुआ तो जाहिर सी बात है ये प्रेशर भी कम हुआ होगा. इसका मतलब प्रेशर जो है वो रूम टेम्परेचर प्रेशर से कम होगा हमारे पास, यानी 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा. दिस शोज दिस रीडिंग conceding 99.48 degrees Celsius shows that the pressure in the lab is lower than 1 atm. सही है. यानी आप ये कह सकते हैं, मैं इसके लिए एक इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकता हूँ कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसका मतलब प्रेशर भी कम होगा. कह सकता हूँ मैं कि लोअर द बॉइलिंग पॉइंट लोअर द प्रेशर. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं, the student constructed the table as shown to record the results of this experiment. Complete column C and D to 3 significant figures. 3 significant figures. तो C जो है वो 3 significant होगा और D जो है वो भी 3 significant होगा. And column E to 2 decimal places. Column E जो है वो 2 dp होगा. MR of glucose is given in the question. Z कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज को डिवाइड करना है मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम. ठीक है. सो मुझे एक्चुअली मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है, तो अगर मुझे मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करने हैं तो जाहिर सी बात है मैं मास ऑफ ग्लूकोज को डिवाइड कर दूंगा MR ऑफ ग्लूकोज से, एंड MR ऑफ ग्लूकोज इज 180. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कॉलम सी फिल करना है तो मैं फॉर्मूला ये यूज करूंगा, मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर 180 एंड 180 इज द MR ऑफ ग्लूकोज, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करूंगा 180 से तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा. फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा 180 से तो मेरे पास आंसर आएगा. सेम गोज फॉर ऑल द टेबल. तो मैं जल्दी जल्दी बेटा डिवाइड करके देख लेते हैं. ये है 2.54 डिवाइडेड बाय 180, सो इट्स गोइंग टू बी 0.0141, राइट. और वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कह रहे हैं तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखा है. 3.46 को डिवाइड करेंगे हम 180 से तो ये हो जाएगा 0.0192. देन 4.37 को डिवाइड करेंगे 180 से तो ये हो जाएगा 0.0243. फिर 5.01 को डिवाइड करेंगे 180 से तो ये हो जाएगा 0.0278. फिर 7.01, oops, am I mistake, 5.01, ओके. फिर 5.93 को डिवाइड करेंगे 180 से तो ये हो जाएगा 0.0329. फिर 7.01 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0389. फिर 7.95 को डिवाइड करेंगे 180 से तो ये हो जाएगा 0.0442. और फिर 8.78 को डिवाइड करेंगे 180 से तो ये हो जाएगा 0.0488. सो कॉलम सी किस तरह से फिल करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा वो पता चल गया. अब हमें Z कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है.
और z कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या कहा कि जो मोल्स ऑफ ग्लूकोज तुमने निकाले हैं उसको डिवाइड कर दो इस वैल्यू से। ना द क्वेश्चन इज कि भाई ये वैल्यू कहां से आई मेरे पास, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये वैल्यू मेरे पास कहां से आई। तो ये वैल्यू मैंने 75 ग्राम ऑफ वाटर यूज किया था, याद है आपको, ये लिखा हुआ यहाँ 75 ग्राम ऑफ डिस्टिल वाटर यूज किया था, राइट। इसके थ्रू निकाली है, कैसे निकलेगी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको। गाइस 1 किलोग्राम is always equals to 1000 ग्राम, राइट। तो अगर आपने 75 ग्राम ऑफ डिस्टिल वाटर यूज किया था, $75 ऑफ डिस्टिल वाटर अगर आपने यूज किया था, तो बताइए ये कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास आंसर आएगा 0.075। इसीलिए 0.075 यहाँ पर लिया गया है। तो आपने बस करना ये है कि जितनी वैल्यूज आपने यहाँ पर कैलकुलेट की हैं इन सबको 0.075 से डिवाइड करके आंसर लिखना है, दैट्स इट। और आंसर लिखने के लिए 3 सिक्विक का ख्याल रखेंगे। सो लेट्स डू इट। ये हो जाएगा 0.188, फिर हो जाएगा 0.256, फिर हो जाएगा 0.324, देन 0.371, फिर 0.0329 को 0.075 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.439, फिर है आपके पास 0.519, फिर है 0.589, फिर है 0.651, राइट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अगर डेल्टा टी आपने कैलकुलेट करना है तो उसने एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई है, वी शुड नो हाउ टू गेट दिस वैल्यू। तो देखो बेटा, ये इनिशियल वैल्यू है आपकी और ये फाइनल वैल्यू है, राइट। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट दैट वैल्यू। इसी तरह से इस वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट दैट। इस वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट दैट। इस वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट दैट। ठीक है, तो मैं एक सैंपल कैलकुलेशन फिर भी करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। मैं डेल्टा टी निकाल रहा हूँ, तो डेल्टा टी निकालने के लिए मैं 99.53 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 99.48 से। सो मेरे पास आंसर आएगा 0.05, राइट। और वो वैल्यू ये आ गई आपके पास। एक और वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, नेक्स्ट वन। ये है 99.58 और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 99.48 से। सो मेरे पास आंसर आएगा 0.10, राइट। याद रखिएगा कि 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, तो मैं आंसर 2 डेसिमल प्लेस में दूंगा, मैं लिखूंगा 0.10। तो मैं बस अब इसको सब्ट्रैक्ट कर करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 0.13, फिर है आपके पास 0.17, देन फिर आपके पास है 0.19, देन फिर आपके पास है 0.22, 0.24, 0.30, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0.33। सही। और 3 मार्क्स के लिए काफी कैलकुलेशन करवाई है एग्जामिनर ने हमसे। याद रखिएगा कि ये भी हमने कैलकुलेशन में शो किया आपको, ठीक है, ये 2 वैल्यूज। ओके, obviously next part is the graph. Plot a graph on the grid to show the relationship between delta T and the amount of glucose in 1 kilogram of water, which is Z. Use a cross X to plot each data point, draw a line of best fit. तो बेटा मैंने ये ग्राफ प्लॉट करके दे दिया, एंड ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है ये इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से सबसे ज्यादा दूर है, विच इज व्हाई इसको मैंने नॉर्मलस पॉइंट का नाम दे दिया। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो क्या कह रहे हैं हमसे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में? वो कह रहे हैं
use the graph and the equation to determine the boiling point constant Kb for water. Give this value to three significant figures and state the units. Okay. Use the graph and the equation. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एक ग्राफ में डेल्टा टी वाई एक्सिस पे है और जेड जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, y, ये आपके पास क्या हो जाएगा, x, एंड ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपके पास, m। ठीक है, वो कह रहे हैं स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू यूज्ड इन योर कैलकुलेशन। सो मैं कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं आपको। एक तो कोऑर्डिनेट मैंने ये ले लिया है, दैट इज सो ऑब्वियस, दैट इज सो ऑब्वियस, दिस वन सबसे इजीएस्ट है, वो ले लिया मैंने। एक ले लिया मैंने 0.000 कॉमा 0.00, एक तो मैंने ये ले लिया है। ठीक है, दूसरा मैं ले लेता हूं दिस वन, राइट, ये एक्यूरेट नहीं है, दिस वन इज एक्यूरेट। ठीक है, और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां। ठीक है, सो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0.205, ओके, और ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये 0.400 है, सॉरी, और ये है 0.205, ये वैल्यू मैंने उठा ली, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। ये हो जाएगा आपके पास 0.000, 0.00, ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट था। सेकंड कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0.400 कॉमा 0.205। वो पूछ रहे हैं कि आपने के बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब आई नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। चलें ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट होगा 0.205 माइनस 0.00। याद रखिएगा कि ये ना आपका टेम्परेचर चेंज है। ठीक है, जिसको आप डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 0.400 माइनस 0.000, एंड ऑब्वियसली ये आपके पास क्या होगा, के विच इज और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट थी डिग्री सेल्सियस, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटे, माय गुडनेस, ये हो जाएगी, यूनिट भी कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट यहाँ लिखी हुई है, ये यूनिट और ये यूनिट ये लिखी हुई है ग्राफ पे। ये डेल्टा टी की यूनिट है डिग्री सेल्सियस, और ये जी की मोल किलोग्राम इनवर्स थी, इसको उठाया हमने, यहाँ रखा। सो यहाँ से ग्रेडियंट मेरे पास आ जाएगा 0.205 डिवाइडेड बाय 0.400। सो मेरे पास आंसर आएगा 0.5125, राइट। अब देखो आपके पास यूनिट यहाँ पर क्या है, डिग्री सेल्सियस, और इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मोल इनवर्स। तो जब आप यूनिट लिखेंगे तो यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस मोल किलोग्राम इनवर्स। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो ये आपके पास यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, ओ ओ, आई मेड अ मिस्टेक, माय बैड माय बैड, दिस इज मोल, मैंने यहाँ मोल इनवर्स कर दिया है, राइट। एक मिनट, होल्ड ऑन अ सेकेंड।
यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू नो। ये था मोल किलोग्राम इनवर्स, तो ये था मोल किलोग्राम इनवर्स। तो जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। सो अगर मुझसे मिस्टेक हो सकती है तो गाइस आप लोगों को भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का, किलोग्राम। ठीक है। तो केबी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 0.5125। तो मुझे आंसर देना है विन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, राइट। तो अगर मुझे आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है तो ऑब्वियसली मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगा 0.513। एंड गाइस रिमेंबर, ये ग्रेडियंट जो है ना ये आपका केबी है। ठीक है। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं delta T actually depends on the number of dissolved particles in solution. In fact, delta T is directly proportional to the number of dissolved particles. हम यहाँ लिख देते हैं कि delta T is directly proportional to the number of dissolved particles. जितना ज्यादा dissolved particles होंगे, जितने particles dissolve होंगे उतनी ज्यादा temperature change होगा। सही है। Part H says the experiment was repeated using solid from a bottle that was labeled glucose but actually contains sucrose. Sucrose is a non-volatile and very soluble in water. What would be the effect of this on the value of the student obtained for Kb? अच्छा भाई, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, सही। तो जब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा एंड ऑब्वियसली आपने एक्सपेरिमेंट में सेम मास यूज किया हुआ है, सिर्फ लेट सपोज आपने इसका 1 ग्राम लिया था, इसका भी 1 ग्राम ही लिया होगा आपने, सही है। तो क्योंकि अब जरा देखिएगा, हाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मोल्स ऑफ सुक्रोज अगर मुझे निकालने हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मेरे पास मास इनिशियली 1 ग्राम था जो कि मैंने डिसॉल्व किया हुआ था और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ सुक्रोज के एमआर से, और सुक्रोज का एमआर क्योंकि ज्यादा है, विच इज 342 आई बिलीव, तो जाहिर सी बात है यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। आप समझ लीजिए ये हो जाएंगे 8 पॉइंट नहीं, वेट, यानी लेस मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, राइट। आपको नजर आ रहा है ना, जब एमआर बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि सुक्रोज का एमआर ज्यादा है और अगर आपने सेम मास यूज किया हुआ है तो उसकी वजह से सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है डेल्टा टी भी कम हो जाएगा। जब डेल्टा टी कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है केबी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सही है, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, कि आपके पास एमआर बढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स कम हुए। जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल्स कम होंगे, जिसकी वजह से डेल्टा टी कम होगा। जब डेल्टा टी कम होगा तो जाहिर सी बात है ये ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा ना बेटा आपके पास, यानी केबी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक। सो अलोंग द लाइन हम कुछ इसी तरह से लिख देते हैं कि sucrose has a higher MR, so for same mass it has less moles, so less number of particles, so less number of sucrose particles, delta T would be smaller, hence Kb also is smaller. दोबारा से सुन लीजिए कि अगर मैंने एमआर सुक्रोज का एमआर ज्यादा है और मैंने सेम मास लिया था तो इसका मतलब इसके मोल्स कम हो जाएंगे। जब मोल्स कम होंगे तो नंबर ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल्स भी कम, डेल्टा टी भी कम। अब जब डेल्टा टी कम तो जाहिर सी बात है ग्रेडियंट भी कम, यानी केबी की वैल्यू भी कम। ठीक है,
फिर वो कह रहे हैं द स्टूडेंट यूज डिस्टिल वाटर टू डिसॉल्व द ग्लूकोज, सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट डिड नॉट यूज अ टैप वाटर। ये मैंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि टैप वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज की वजह से जाहिर सी बात है टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर वन मार्क हम लिख सकते हैं कि टैप वाटर contain impurities and dissolve minerals। आप मिनरल्स बोलो आयंस बोलो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मिनरल्स में आयंस ही होते हैं, राइट? So this will change the temperature। टेम्परेचर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट में इनएक्यूरेसी जनरेट होगी। Okay, last part of the question is the student repeated this experiment using sodium chloride as a solute. The student found their calculated value of Kb was twice the calculated value that obtained with glucose. Suggest a reason for this। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ग्लूकोज जो है वो डिसॉल्व तो होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन आयोनाइज नहीं होता। जबकि सोडियम क्लोराइड जब वाटर में प्लेस करोगे, यहाँ देख लो, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में प्लेस करोगे तो ये डिसॉल्व होने के साथ साथ डिसोसिएट भी होगा इनटू इट्स सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। ऑब्वियसली आपके पास टू आयंस फॉर्म हुए हैं, टू आयंस हैं, तो Kb की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। सही है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर NaCl is an ionic solid while glucose is simple covalent molecule। When sodium chloride is placed in water, it ionizes into its sodium ions and chloride ions। This gives two ions per NaCl, hence value of Kb is also twice as well। ठीक है, that's the end of question number 2, that's the end of paper 5 classes। Guys, remember one thing, there's a lot of work in paper in A2, right? क्योंकि you haven't done a single practical paper in paper 3, you haven't done paper 4, which is why इस साल हमें special attention की जरूरत थी in order to complete paper 5 or in order to prepare paper 5, which is why मैंने winter breaks में ये 10 days की एक्स्ट्रा क्लासेस आपको दी ताकि आप पेपर 5 अटेम्प्ट कर सकें। ये अभी हमने जून सेशन कवर किया है, when we will finish the paper, I mean paper 4 की क्लासेस, when we will finish the syllabus, obviously we need to catch up with October November sessions के पेपर 5 as well as Feb March के पेपर 5, उन सबको भी देखना है हमने आने वाले टाइम में। तो होपफुली कि मैंने आपको ये सारे पेपर्स कराए, आप 17 और 16 का पेपर अटेम्प्ट करके देखिए, जून 16 जून 17,
and I hope you can attempt that paper after so many extensive classes and extensive explanation. Thank you very much, guys, for